multiculturalism is a very big issue certainly in the West, मगर हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ा इशू इसलिए क्योंकि किताब के अंदर जिस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म को प्रेजेंट किया गया, ज़ाहिरी बात है किताब लिखी गई है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, मगर हमने इन पॉलिटिकल थियरीज़ को कुछ हद तक पाकिस्तान के अंदर भी सिचुएट करना है, या साउथ एशिया के अंदर सिचुएट करना है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वी आर अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग रहते हैं। सिंध की अपनी एक सकाफ़त है, पंजाब की अपनी सकाफ़त है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी और बलूचिस्तान की अपनी सकाफ़त है, और उसके अलावा भी देर आर important minorities that are living within Pakistan that are not necessarily in their own territory. जिस तरह Mahajir community is a big ethnic community inside Karachi as well as Hyderabad. तो जो problems वहाँ के लोग बयान कर रहे हैं, we can also see that we can have a similar and we have had similar debates in Pakistan. In fact ये सवाल तो इतना अहमियत रखता था कि आप जानते हैं कि 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया। So it was our failure to create a multicultural society and a multinational society that led to the separation of East Pakistan. For that reason, I think the question of multiculturalism is even more important to us, perhaps, given the diversity that exists within Pakistan than it is in England. अच्छा जी, जो traditional model of citizenship था, वो ये था कि citizen को कुछ common rights दिए जाएंगे, regardless of the color of their skin or their nationality or language, etc. You remember the conversation about liberalism as having abstract rights. So we're going to abstract away from their nationality, religion, race, whatever, and just going to say these are the set of common rights that you get, and when you have these common rights and these are the common responsibilities, that's it. You're a citizen, no more, no less than that. So, but multiculturalism is generally an approach जो ये कहती है कि we need to give greater attention to cultural pluralism and to group differentiation. यानी कि हमने ये तो कह दिया कि जी ये सब ब्रिटिश सिटीजन्स हैं या ये सब पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, इनके ये सब राइट्स हैं और ये इनकी जिम्मेदारियाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, गल मुक गई। मगर हम जब देखते हैं एक्चुअल सिटीजन्स को तो उसमें हम ये देखते हैं कि बलोच लोग जो हैं वो फील करते होंगे और करते हैं कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर रिकग्निशन नहीं मिलती, हमें पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक़ नहीं मिलते, etc. etc. So just to announce in the legal document or paper कि oh yes you are all equal, we have the same responsibility and rights, in fact does not necessarily address many of the questions that can arise in a multicultural society. अब हमने ये देखा कि increasingly we have today what is often referred to disparagingly as identity politics. Okay, generally जो लोग identity politics करते हैं, they don't like to be called people who are doing identity politics, number one. And secondly, जो लोग सबसे बढ़ के identity politics करते हैं उन पे तो कभी इल्ज़ाम ही नहीं लगता कि actually what you are doing is a kind of identity politics. मेरी मुराद ये है कि जो वाइट नेशनलिस्ट हैं वो भी एक किस्म की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, मगर उन पे कभी इल्ज़ाम नहीं लगता कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब लगता है तो ब्लैक नेशनलिस्ट पे ही लगता है कि आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब if we go into the history, we see that non-white groups were often denied entry to Western democracies, or if admitted, were expected to assimilate to become citizens. Indigenous peoples were either shunted into isolated reserves and or forced to abandon their traditional lifestyles. Homosexuality was often also criminalized. So basically एक scenario ऐसा बना कि you know that certain European countries, not all of them, came to dominate the globe. और उन societies की domination की वजह से over other societies, उन dominated societies, colonized societies के बहुत सारे लोग जो हैं वो colonizer country के अंदर भी रहते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा। फ्रांस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बिकॉज फ्रांस ने जब अल्जीरिया वगैरह पे अपनी डोमिनेंस की हुई थी तो अबाउट 1 million फ्रेंच पीपल वर सेटल्ड इनटू अल्जीरिया एंड मिलियंस ऑफ अल्जीरियंस सेटल्ड इन रिवर्स इन फ्रांस। ये जो लोग वहाँ जाके सेटल करते हैं, हम तो ये सोचते हैं इनकी बड़ी मौज होगी, हाय काश हम भी वलायत चले जाएँ, ठीक है ना, मगर रियलिटी ये है कि दे स्टार्टेड एमिग्रेटिंग वेरी वेरी अर्ली. You'll be surprised to discover this is not the last 10-20 years alone, मगर उससे भी बहुत पहले से ये इमिग्रेशन शुरू हो गई थी और वो मैनचेस्टर की और दूसरी मिलों के अंदर जाके काम करते थे, क्योंकि मिलों के अंदर आपको फैक्ट्री हैंड चाहिए थी, तो दिस वाज फैक्ट्री लेबर that went and immigrated first and foremost in these countries. So the Algerians who are living in France, the North Africans who are living in France, या जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी इंडियंस जो वलायत में रह रहे हैं ईस्ट लंदन में या जहाँ पे भी, वो वहाँ की वर्किंग क्लास का हिस्सा है, वो वहाँ की एलीट का हिस्सा हरगिज़ नहीं है. और एक बहुत बड़ी रीज़न फॉर देयर लैक ऑफ इंटीग्रेशन इज़ प्रिसाइसली दैट देर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास. अब टी एच मार्शल को हमने एक पिछले वीडियो के अंदर भी लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था,
और हमने ये बताया कि टी.एच. मार्शल वांटेड टू चेंज हाउ वी व्यू सिटीजनशिप। उसका ये ख्याल था कि देखो जो वर्किंग क्लास है वो किसी भी एतबार से, अब वो ब्रिटिश वर्किंग क्लास, इंग्लिश वर्किंग क्लास की बात कर रहा है, वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो इंग्लिश हैं, वो वहाँ पे जद्दी पुश्ती रह रहे हैं, मगर उसका ये नुक्ता नज़र था कि एक्चुअली दे आर नॉट इंटीग्रेटेड into the national project. They don't feel British as such. They don't feel English necessarily as such, although they are, but they don't feel as vibrant parts of national culture, or they don't feel like, they don't have that nationalist spirit. He argued iski wajah ye thi lack of education and economic resources excluded them from enjoyment of national culture. They didn't know any Shakespeare, ya John Donne, ya Dickens, ya King James Bible, Cromwell, Glorious Revolution, cricket वगैरह, इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी इन चीज़ों में। क्रिकेट ओरिजिनली वाज एन अपर क्लास स्पोर्ट, लॉर्ड्स की गेम थी ये, आम पब्लिक की गेम नहीं थी। आम पब्लिक जो है वो फुटबॉल पसंद करती थी, फुटबॉल बड़े शौक से खेलते थे, मगर जो ज़रा अपर क्लास लोग थे वो ब्रिटिश, वो क्रिकेट खेलते थे। वो चक्कर ये था कि इनके बड़े बड़े बगीचे होते थे, लॉर्ड्स होते थे, इनके पास बड़ी बड़ी एस्टेट्स होती थी। उन बड़ी बड़ी एस्टेट्स पे घूमने फिरने का तरीका ये होता था कि चलो चल के 5 दिन पिकनिक करेंगे, तुम बॉल फेंकना, मैं उसको मारूंगा, इसको हम कहेंगे क्रिकेट। वो 5 दिन चलती रहती थी गेम, ख़वातीन भी वहाँ पे हैं, बच्चे भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम भी बड़ा होता था, इसीलिए क्रिकेट ओरिजिनली 5 दिन चलती थी। ठीक है, मैच ही ख़त्म ही नहीं होता था, चलता ही रहता था, तो इट वॉज एन एक्सटेंडेड पिकनिक। इसी तरह फिर एक और उनकी शौक़ उनको चढ़ा कि अपने जो लैंड्स हैं उन पर ज़रा वॉक मारते हैं। वॉक मार रहे थे, बोर होते थे, कहते चलो एक बॉल पकड़ते हैं, उसको जो है ना मारी जाते हैं साथ साथ। तो इस तरह उन्होंने गोल्फ इन्वेंट कर ली कि 2-4 मोरियाँ भी बना ली। उन्होंने कहा कि चलो ये बॉल जो है ना मैं मोरी में डाल दूंगा, तो इस तरह गोल्फ की गेम बन गई। ये दोनों गेम्स जो थी ना एलीट की गेम्स थी, ठीक है। और पाकिस्तान की जो एलीट थी, जारी बात है, जो बड़ी ब्रिटिश ट्रेंड थी, उन्होंने कहा फिर हम भी सीखते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों ने भी सीखनी शुरू कर दी क्रिकेट, एम्यूलेटिंग द ब्रिटिश अपर क्लासेस। द पाकिस्तानी अपर क्लासेस आल्सो स्टार्टेड एम्यूलेटिंग इट। सो इन फैक्ट अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कभी जेनेसिस पढ़ें, अली खान की किताब भी है इस पर, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि शुरू में 50s के अंदर क्रिकेट वॉज रादर एन एलिटिस्ट स्पोर्ट इवन इनसाइड पाकिस्तान, मगर जब ये टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होनी शुरू हुई तो फिर चप्पे चप्पे में, गली गली में लोगों ने इसको खेलना शुरू कर दिया। टेप बॉल क्रिकेट इन्वेंट हो गई और टेप बॉल क्रिकेट बिकेम अ वर्किंग क्लास स्पोर्ट, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम क्रिकेट भी चेंज हो गई, क्योंकि बच्चे जो इतनी टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, दे बिकेम सो गुड, द एंटायर क्रिकेट टीम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेट टीम जो ज़्यादातर अपर क्लास लोगों की होती थी, टू बिकमिंग अ क्रिकेट टीम विच वाज रिक्रूटेड फ्रॉम द वर्किंग क्लास इटसेल्फ। तो खैर बैक टू मार्शल का ये ख्याल था कि हमें किसी तरह ब्रिटिश वर्किंग क्लास को ब्रिटेन के नेशनल कल्चर में इंटीग्रेट करना है। दे शुड फील लाइक दे आर प्रॉपरली इंग्लिश, यू नो, एंड दे नॉट they don't feel like they're properly English. And for Marshall this was a problem because उसको ये डर था कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म इतना पॉपुलर हो रहा है कि जो ब्रिटिश वर्किंग क्लास है ये कम्युनिस्ट हो जाएगी, ये बोल्शेविक हो जाएगी, ये प्रो सोवियत यूनियन हो जाएगी और ये हमारे खिलाफ ही बगावत करेगी, इनकलाब करेगी। तो किसी तरह इनको कम्युनिज्म से दूर रखना है। दूर रखने का तरीका ये है कि इनको एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह ऑफर करें, इनको सिटीजनशिप दें, इनको ब्रिटिश, ज़्यादा इंग्लिश ब्रिटिश बनाएं। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट था। द प्रोजेक्ट वॉज ऑफ कोर्स एक्सटेंडिंग सिटीजनशिप, और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड के अंदर दिस बिकेम अ वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट इन इंग्लैंड ऑफ कोर्स बट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। सो दिस वाज नॉट जस्ट एल्ट्रुइस्टिक एक्सरसाइज कि हाय बेचारे गरीब लोग, इनका क्या किया जाए, मगर इट वाज पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द होल एंटी कम्युनिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हाउ डू वी इंश्योर सिक्योर आवर कंट्री फ्रॉम बोल्शेविज्म। तो इस वजह से उन्होंने ये पूरा वेलफेयर स्टेट टुगेदर विद द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग जो है शुरू किया, टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी विच वुड मेक द वर्किंग क्लास इम्यून टू कम्युनिज्म। सो इसमें यह था कि राइट ऑफ एजुकेशन तो है, राइट ऑफ हेल्थ केयर तो है, मगर उसमें इट ऑल्सो सर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। मिसाल तौर पर राइट ऑफ एजुकेशन ये नहीं था कि अगर आप बांग्लादेशी हैं तो आप बंगाली के अंदर जो है वो अब तालीम हासिल करें, या अगर आप उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी हैं और आप वहाँ बैठे हुए इंग्लैंड के अंदर, वो आपको अपनी लैंग्वेज में मिलेगी एजुकेशन। नॉट एट ऑल, आपको एजुकेशन मिलेगी तो वो इंग्लिश में मिलेगी और उसका सिलेबस तय होगा, उसके अंदर आप शेक्सपियर पढ़ेंगे और रोमियो एंड जूलियट पढ़ेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। उनके कल्चर को पढ़ेंगे, अपने कल्चर को शायद नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि वो तो चलो वहाँ बैठे हुए थे तो समझ आती है कि वहाँ पे उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया, मगर आप गौर करें कि हम सब जो हैं, हम सब पाकिस्तान
की ही पैदावार हैं, मगर एजुकेशनली हमारा सारा एम्फोसिस यही था कि हमने वो ब्रिटिश एजुकेशन हासिल करनी है, और लिहाजा हम जब लिटरेचर वगैरह पढ़ते थे तो अपने लिटरेचर पे फोकस बहुत ही कम है और रहा है, और उनके लिटरेचर पे फोकस ज़्यादा रहा है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इतना इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम है जो कि पाकिस्तान की एलीट पढ़ती है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और जिसका मैं भी प्रोडक्ट हूँ, वो बेसिकली यही चीज़ है। अब हमें किमले का ये बताता है कि वी हैव, लेट्स थिंक अबाउट दिस, लेट्स थियराइज दिस इन द सेंस कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, या आप कह सकते हैं दो मुख्तलिफ किस्म की हायरार्कीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो बड़ी फेमिलियर हायरार्की जिसको हम क्लास इनइक्वालिटी या क्लास हायरार्की कह सकते हैं, वो क्या है कि लोगों के दरमियान इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। जो गरीब हैं ज़ाहिर बात है वो चाहते हैं कि हमें हेल्थ भी मिले, हमें एजुकेशन भी मिले, ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, हमें अच्छी नौकरियां भी मिलें, महंगाई भी ना हो, बेरोज़गारी भी ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। तो उनका जो इंटरेस्ट था कि वेलफेयर स्टेट कायम हो, वो यही था कि दे नीड रीडिस्ट्रीब्यूशन, दे नीड एक्सेस टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, जो वर्किंग क्लास की बिलअमूम पॉलिटिक्स थी, और ये उस वक्त सिर्फ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि हम 19th सेंचुरी से ट्रेस आउट कर सकते हैं कि जो मेहनत कश तबका था, मजदूर, वर्किंग क्लास के लोग थे, उनकी पॉलिटिक्स एक किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन थी। एक तो वो ये भी चाहते थे कि हमें वोट का हक मिले, जारी बात है, मगर इसके साथ साथ वोट का हक वाज आल्सो अ मींस टू एन एंड, इट वाज आल्सो एन एंड इन इटसेल्फ, अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन कि भाई हम भी सिटीजन हैं, हमें भी वोट का हक मिले। बट एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो मींस टू एन एंड कि हम अपने बंदे पार्लियामेंट में भेजेंगे, जब हम बंदों को इलेक्ट करेंगे फिर हम प्रेशर लगाएंगे कि भाई साडा भी तो कुछ करो ना तुसी। तो इस तरह दिस इज़ द ओल्ड क्लास पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन कि भाई वर्कर्स शुड आल्सो गेट हेल्थ एंड एजुकेशन एंड जॉब्स एंड a better life, etc. So the welfare state is really in England, in France, and in many other European countries the result of this politics of class inequality. नीचे से प्रेशर आया और काफ़ी ठीक ठाक प्रेशर था कि भाई चेंज करो, सोसाइटी को चेंज करो, हमें भी इंसानों वाली ज़िंदगी दो। और ये प्रेशर जो था, इसमें ये बड़ा रियल प्रेशर इस सेंस में बन गया अपर क्लासेस के लिए कि उनको, अपर क्लासेस को ये डर था कि अगर हमने नहीं चेंज किया, अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये सारे कम्युनिस्ट हो जाएंगे, बोल्शेविक हो जाएंगे, सोवियत यूनियन का साथ देना शुरू कर देंगे। सो वी नीड टू मेक सर्टन चेंजेस एंड रिफॉर्म्स। वो प्रेशर ना होता तो उन्होंने खुद ब खुद चेंजेस नहीं करने थे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो यूरोप है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, उसके अंदर वास्ट इनइक्वालिटी है। इनफैक्ट वहाँ की उस पीरियड की इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसी जिस तरह आज की पाकिस्तान की इनइक्वालिटी है या थर्ड वर्ल्ड की इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, बराए नाम भी नहीं है मैं तो कहूँगा। तो यहाँ पे जो वास्ट क्लास इनइक्वालिटी नज़र आती है, इसी किस्म की पॉवर्टी और एक्सट्रीम किस्म की इनइक्वालिटी हमें 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में भी नज़र आती थी। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी। पहले वाले वीडियो में मैंने पहले वाले स्लाइड में मैंने कार्ल मार्क्स की तस्वीर डाली, तो दूसरे वाले में मैंने मैक्स वेबर की डाली। उसकी वजह ये नहीं है कि मार्क्स स्टेटस इनइक्वालिटी की बात नहीं करता या वेबर क्लास इनइक्वालिटी की बात नहीं करता, दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मगर अक्सर जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं तो वेबर ने स्टेटस के कॉन्सेप्ट को कुछ ज़्यादा नुमाया किया, एलेबोरेट किया, उस पर बातचीत की। उसने ये कहा कि एक चीज़ है सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कि जिसके अंदर अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी इनकम में बहुत फ़र्क है, एक्सेस टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क है, मलकियत में बहुत बड़ा फ़र्क है। बट देर आर ऑल्सो अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट वी हैव दैट वी कॉल स्टेटस इनइक्वालिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जो एक प्रोफेसर है तो उसका एक स्टेटस है सोसाइटी में, या कम से कम पहले तो ज़माने में होता था, अब शायद नहीं है, तो उसका एक स्टेटस है। या डॉक्टर है, उसका एक स्टेटस है, PhD है तो उसका एक स्टेटस है, वगैरह वगैरह, उसकी एक इज्जत की जाती है समाज के अंदर, एंड सो ऑन। So status is very important. Status inequality says it is better to be English than to be Irish. So for example in Pakistan we can see कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं ये पूरा लेक्चर पंजाबी में करूँ तो आपके जहन में कुछ और इंप्रेशन पड़ेगा, अगर मैं उर्दू में करूँ कुछ और इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर मैं अंग्रेज़ी में करूँ और वो भी बड़ी चुस्त किस्म की, वी आर ऑल ब्रिटिश किस्म की अंग्रेज़ी में करूँ, तो आप कहेंगे इन्हों पता है कि गल की है गल, चाहे मैं बकवास करी जा रहा हूँ, मगर आप कहेंगे यार नहीं इन्हों अंग्रेज़ी आती है, इसका मतलब है पढ़िया लिखा है। तो इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जो है ना, इंग्लिश इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द आयरिश। आयरिश जो थे बेचारे, उनको इंग्लिश ने उसी तरह कॉलोनाइज़ किया हुआ था जिस तरह उन्होंने हमें भी कॉलोनाइज़ किया हुआ था। यही वजह कि आप गौर करें कि आयरलैंड के लोग जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ टोटली खड़े हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है, उनके पॉलिटिशियंस भी खड़े हुए हैं, उनके लोग भी खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट होती हैं एंड सो ऑन। और ना सिर्फ ये, बड़े सारे वो वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं आयरिश। क्यों बनाते हैं? कहते हैं ये वही हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ जो हमारे साथ हुआ था, इसलिए हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीकन्स भी यही कहते हैं।
So anyway, there's an ancient problem there in the context of England. ये Cromwell के ज़माने से चल रही है, जब Cromwell ने जाके आयरलैंड को इन्वेट किया, कॉन्कर किया and so on. So English is better than Irish, better to be Protestant than to be Catholic, because वो आप जान, थोड़ा सा मैंने आपको बताया पिछले lectures में कि वो they broke from the Catholic Church, became Anglican, etc., became Protestant, etc. England broke from the Catholic Church back in the period of Henry VIII. It is so it's better to be Christian than to be Jewish or Muslim, etc. इसके पीछे भी बड़ा वो पुरानी history है एक किस्म की. Not legally speaking, legally सब बराबर हैं, मगर what does it mean to be properly English? It means to be these things. Better to be white than to be black or brown or yellow, better to be male than female, better to be heterosexual than homosexual, and better to be able-bodied than disabled. ठीक है? So whatever these categories are, we can recognize that on the basis of certain traits that you have, that are not class traits necessarily, you can have a better status in any given society. अगर आप इंडिया के अंदर हैं for instance, और आप मुसलमान हैं, तो आजकल के पीरियड के अंदर आपका स्टेटस जो है ना वो, अनलेस कि आप आमिर खान या शाहरुख खान लेवल के हैं, अब उनका स्टेटस भी वो गिराने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त कि नहीं इनको नीचे करो एक्सेट्रा, राइट? बट यू गेट द पिक्चर कि स्टेटस इज़ वेरी मच टाइड टू व्हाट द मेजॉरिटी कम्युनिटी इज़. जो मेजॉरिटी जब आप कहते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, इब्राहिम सो गए हो, पाकिस्तानी जब आप कहते हैं, व्हाट इज़ द टिपिकल इमेज ऑफ द पाकिस्तानी दैट यू गेट? इफ़ यू हैड टू मेक अ पाकिस्तानी, तो वो क्या इमेज होगी पाकिस्तानी की? कैसा लगेगा वो मर्द होगा, वो हो सकता है कि शलवार कमीज़ पहनता हो, शेरवानी, वास्केट टाइप, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक. मुसलमान होगा, यस, हाँ, सॉरी, प्योर देसी होगा. पहले कहते हैं ना मुसलमान भी होगा. हम अगर किसी क्रिश्चियन को टिपिकल पाकिस्तानी बना दें तो आप ये कहेंगे कि भाई माना कि क्रिश्चियंस भी पाकिस्तानी, बट इज़ नॉट अ टिपिकल पाकिस्तानी, राइट? अच्छा, तो वो ये होगा. फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी है कि वो सुन्नी होगा, ठीक है, अहले तशीर नहीं होगा, या जो भी, शायद वो उर्दू स्पीकिंग पंजाबी हो, हाँ, आदाब हो. ये तो यूपी का कोई क्योंकि पाकिस्तान में आप आदाब लोग नहीं बोलते, मगर यस, ओके, गुड पॉइंट. एंड सो ऑन सो फोर्थ. यानी एक टिपिकल इमेज है आपके जहन में पाकिस्तानी की, हैं? मुझे होंगे कि नहीं होंगी? नहीं, तुम्हारी नहीं है तो इसलिए तुम कह रहे नहीं होगी. दाढ़ी होगी, छोटी या बड़ी? इतनी छोटी, अच्छा, हाँ, फेस तक थोड़ी सी दाढ़ी, अच्छा. ओ यार चलो, रिसीडिंग हेयर लाइन में भी, बट यू गेट द पिक्चर कि एक इमेज है हमारी ऑफ अ टिपिकल पाकिस्तानी. और बट ऑफ कोर्स अगर आप सोसाइटी में देखेंगे तो आपको वो टिपिकल पाकिस्तानी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? जो वो टिपिकल पाकिस्तानी है वो कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा. हर बंदा किसी ना किसी हवाले से डिफरेंस है. एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है, द मेजॉरिटी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज, राइट? So what that means, of course, is that you think this is a typical Pakistani, but when you go to find a typical Pakistani, you will find कि किसी ना किसी point of view पे वो atypical ही निकलेगा. शायद आपको receding hairline वाला, दाढ़ी वाला, थोड़ा सा मोटा, पंजाबी, उर्दू speaking पाकिस्तानी मिल जाए जो आदाब कहता हो, मगर फिर आप डिस्कवर करेंगे कि कोई ना कोई उसमें बात विंगी होगी और आप कहेंगे नहीं, दैट्स नॉट वेरी टिपिकली पाकिस्तानी बिहेवियर, इसलिए यू आर आउट, ठीक है? बट यू गेट द पिक्चर कि स्टेटस इज टाइड टू अदर थिंग्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको हम आजकल की वोक लैंग्वेज में कहेंगे प्रिविलेज, ठीक है? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, somebody will say to me, sir, you have to recognize or check your male privilege out the door. I have a certain privilege of being a male, I have a certain privilege of being upper class, I have a certain privilege of being, let's say, educated from abroad, I have a certain class privilege, etc., etc. but class को हम रहने दे रहे हैं, ठीक है? So I have a certain privilege of being Muslim, etc., etc., mainstream within Pakistan. यही बंदा अगर मैं किसी और सोसाइटी में चला जाऊँ, अगर मुझे उठा के आप कहीं जर्मनी में डाल दें, तो वो सारी वो जो the privilege of being a Muslim here in a Muslim majority society will be lost to me, ठीक है? So it's a relational property. But हम समझ सकते हैं कि कुछ status की अपनी hierarchy होती है. The status hierarchy is reflected in history of discriminatory laws against lower status groups and in their ongoing invisibility or stereotyping in the media, schools, museums or state symbols. आप देखें ना, जो पश्तून है वो हमेशा इस बारे में कहते हैं कि हमें
हमेशा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि ये ड्रग रनर्स हैं, ये बेवकूफ़ हैं या स्लो हैं या बड़े, नहीं, ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं किया जाता। किया जाता है ना। अच्छा, पंजाबी कंप्लेन करते हैं कि हमें हमेशा स्टीरियोटाइप किया जाता है कि हम बड़े डम हैं, हमें ये नहीं पता कि बच्चा अगर वलायत में अंग्रेज़ी बोलता है इसका यह मतलब नहीं है कि वो बड़े अक्लमंद हैं वगैरह वगैरह, मगर हम बड़े लाउड हैं, ग्रेगेरियस है, ओए आजा चल खाना खाइए वगैरह। टिपिकल पंजाबी स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। मुझे बड़े पसंद है पंजाबी स्टीरियोटाइप्स बाय द वे, बिकॉज मैं खुद पंजाबी, आई डोंट माइंड देम, बट बहरहाल बलोच के हवाले से भी वगैरह। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स दैट वी हैव, राइट? एंड दीज स्टीरियोटाइप्स कैन समटाइम्स बी वेरी हर्टफुल एंड कैन समटाइम्स बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। आप अपना मजाक उड़ाए ना तो कोई मसला नहीं, मगर कोई दूसरा आपका मजाक उड़ाए ना तो उसमें मसला पैदा हो जाता है। बिकॉज वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किसी एक दूसरे कल्चर का मजाक उड़ाने से कहने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरी सकाफत, मेरी कौमियत, मेरी पहचान तुम्हारी पहचान से, तुम्हारी सकाफत से, तुम्हारी कौमियत से बेहतर है। और दैट्स नॉट अ नाइस प्लेजेंट आइडिया, इज इट? जब आप अपना मजाक कर रहे होते हो तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं किसी दूसरे से बेहतर हूँ, ठीक है? आप एक किस्म की अपने कल्चर को एंजॉय भी कर रहे होते हैं, अपनी ही क्रिटिक कर रहे होते हैं, तो वो और चीज़ बन जाती है। सो एनीवे, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। और कभी कभार तो ये होता है कि इनविजिबलाइज ही हो जाते हैं। ये नहीं कि उनके बारे में कोई नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, मगर ये कि उनके बारे में कोई स्टीरियोटाइप है ही नहीं। मिसाल के तौर पे हम इतनी मौसीकी सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, शौक़ से सुनते हैं, मगर मुझे बताएं कितने बलोच पोइट्स का आपको नाम पता है, या कितनी बलोच गायकी आपने सुनी है, पोइट्री सुनी? कोई भी नहीं सुनी, ठीक है? यू ग्रो अप, यू लिसन टू दिल दिल पाकिस्तान, एंड मे बी यू लिसन टू अल्लाहू एंड सूफियाना कलाम इन पंजाबी, मगर मैं भी आई डिडंट ग्रो अप लिसनिंग टू एनी बलोच पोइट्री, आई डिडंट ग्रो अप लिसनिंग टू एनी पश्तो म्यूज़िक, बीबी सनम जानम के अलावा, ठीक है ना? तो हम नहीं शेयर कर पा रहे एक दूसरे के साथ एक दूसरे का कल्चर। हमने इनविजिबलाइज ही कर दिया है कल्चर को। हमने कुछ कल्चर को जो है कहा है कि हाँ दिस विल बी सेलिब्रेटेड। ख़ास तौर पे अगर बड़ी फ़ारसी वाली उर्दू होगी तो में घोरक धंधा हो, हम कहेंगे ये ठीक है, शायरी ठीक है, मगर उसको जो हमने स्टेटस इतना हाई दे दिया है, और जो बंगाली शायरी थी और बंगाली ज़बान के अंदर इतना सारा लिटरेचर था, फेलियर टू रिकग्नाइज दैट एज पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज़ व्हाट लीड्स देन ऑन द अदर साइड टू पीपल सेइंग यू हैव कम्प्लीटली इनविजिबलाइज्ड माई कल्चर, माई हेरिटेज। वो हज़ारों सालों की तारीख जो है उसको आपने कोई रिकग्निशन ही नहीं दी। यू सी, दिस कैन क्रिएट many problems. So this is what creates, as opposed to the politics of redistribution, जो कि तबकाती जदोजहद से निकलती है, this is what creates the politics of what we can call recognition, कि हमारी सकाफत, हमारी ट्रेडिशन, हमारी हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज को भी तो रिकग्नाइज करो ना, कि हम भी हज़ारों सालों से यहाँ पे एग्जिस्ट करते आए हैं और उसके पीछे एक वास्ट हिस्ट्री है, उसका क्या होगा? So the politics of recognition focuses on cultural injustices, not economic but cultural injustices, rooted in social patterns of representation, interpretation, communication, including cultural domination. It looks at non-recognition, जिसमें आप invisibilize हो जाते हैं, या disrespect, जिसमें आपको stereotype बना के कोई negative stereotype आपके बारे में बना दिया जाता है. The remedy is cultural or symbolic change to upwardly revalue disrespected identities and cultural products of maligned groups or positively value cultural diversity. अब आप हॉलीवुड में ये देखें कि वहाँ पे constant emphasis होता है कि अफ्रीकन अमेरिकन को शामिल किया जाए, ख़वातीन को शामिल किया जाए, ख़वातीन डायरेक्टर्स को एक्नॉलेज किया जाए, नेटिव अमेरिकन को एक्नॉलेज किया जाए। अब है, पहले नहीं था, हिस्टोरिकली नहीं था ऐसे, मगर अब काफ़ी हद तक वो कहते हैं नहीं, वी हैव टू एक्नॉलेज ऑल दीज पीपल दैट हैव बीन इनविजिबलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आहिस्ता आहिस्ता शायद पाकिस्तान के अंदर भी ये रिकग्निशन है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर या इंडियन मूवीज़ भी आप देख लें, इंडियन मूवीज़ के अंदर एक हमेशा को कॉमिक एक बंदा होता है जो बड़ा फ़नी किस्म का रोल प्ले कर रहा होता है। जॉनी, क्या नाम था उस बंदे का जो बड़ा, जॉनी लीवर, हाँ एग्जैक्टली उसका यही नाम है। अब जॉनी लीवर को हमेशा वो ये रोल प्ले कर देते थे, दिल वाले दुल्हनिया में भी और कुछ कुछ होता है एंड सो ऑन में ना, ही इज़ ऑलवेज द कॉमिक रिलीफ एक्सेट्रा। मगर आप गौर करें कि जो कॉमिक रिलीफ होता है वो ऑफन उसके बारे में आप देखेंगे कि उसके बारे में एक सर्टन स्टीरियोटाइप होता है, जो कि अगर आप थोड़ा सा पील अवे करें एट द लेयर्स, आपको दिखेगा कि वो उसकी भी रूट्स हैं इन द हिस्टोरिकल कास्ट सिस्टम इन इंडिया।
ये आपको महसूस होगा, या इन अ सर्टन काइंड ऑफ क्लासिज्म विद इन इंडिया। सो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मैं जानता हूँ, मगर आप कभी इसको तहकीक करें, आपको पता नजर आए। कभी फनी नहीं लगेगा, हम ये सोचने लग जाएंगे कि यार ये तो हाँ क्लासिज्म। यस, यही बात है कि, और यही इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन में, कि हमें कुछ लोग बड़े फ़नी लगते हैं, राइट, कि मगर हमें एहसास नहीं हो रहा कि फिल्म आफ्टर फिल्म अगर एक सर्टन रेस के लोगों को, अगर एक सर्टन क्लास के लोगों को, अगर एक सर्टन किस्म के लोगों को हमेशा बस रिडिक्यूल ही करता रहेगा, फ़नी बनाता रहेगा, तो मेन स्ट्रीम कल्चर में उन लोगों के बारे में इंप्रेशन ही ये बन जाएगा। उन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा। फ़र्ज़ करें कि अगर अफ्रीकन अमेरिकन को हर फिल्म के अंदर आप क्रिमिनल दिखाते हैं, हर फिल्म के अंदर जो क्रिमिनल है वो कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा कि जब आप अफ्रीकन अमेरिकन को मिलेंगे किसी सड़क पे, आप कहेंगे ओ क्रिमिनल आ रहा है। स्टीरियोटाइप बना दिया ना, आपने बनाया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों की इन कल्चर, उसके अंदर ऐसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। अगर एक फिल्म में आप बनाते हैं किसी को नेगेटिव बना देते हैं, किसी माइनॉरिटी फिगर को, नो प्रॉब्लम, राइट। मगर अगर फिल्म आफ्टर फिल्म में ट्रेंड हो तो फिर वो स्टीरियोटाइप बन जाता है, फिर वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ऐसे स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं और करते आएंगे। So anyway, targets are status groups defined by relation of recognition in which they enjoy lesser esteem, honor, prestige in other groups, and it aims, of course, to affirm group differences. So अब आप ये नहीं कहते कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी भी वैल्यूज़ वही हैं जो मेरी वाइट पर्सन की वैल्यूज़ हैं, नो। या सिंधी इसलिए नहीं अच्छा क्योंकि उसकी भी वैल्यूज़ वही हैं जो मेरी पंजाबी होने की वैल्यूज़ हैं, नो। आप उसको उसकी वैल्यूज़ पे भी तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब ये भी तो कह सकते हैं कि यू डोंट हैव टू बी लाइक मी इन ऑर्डर फॉर मी टू अप्रिशिएट यू। आई कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर नॉट लाइक मी एंड येट यू आर यू, एंड आई लव यू फॉर हु यू आर. Not that I love you for who, not that I don't love you for who you are. You get the picture, yes? So you get the idea. You don't have to be me in order for me to like you. So this brings us to the idea of status versus class. So what we have to understand is that status और class में फ़र्क है. You can have somebody from the upper class with low status. ये कैसी अजीब सी बात है. मिसाल तौर पे अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं और अरब है, जापानीज़ हैं, या आप होमोसेक्सुअल हैं, या आप कुछ और हैं, और आप उनके कल्चर के साथ नहीं मिक्स हो सकते, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती बिलफर्ज, हैं आप बड़े अमीर शेख हैं पूरे, आपके पास 10 मर्सिडीज़ बेंज पड़ी हुई हैं, मगर आप वहाँ पे फिट नहीं हो सकते, तो आपका स्टेटस लो ही होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास पैसे बड़े होंगे. ठीक है. सो द पॉलिटिक्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन दैट केस विल नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उनका मसला ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनका मसला ये है कि उनके पास स्टेटस रिकग्निशन नहीं है, तो वो उसके लिए काम करेंगे. ठीक है. दूसरी तरफ people with no money but high status can also exist. Like if you're white, you're straight, you're an English speaking worker, so you're part of the, in that sense you're part of the mainstream. You're poor but you're part of that kind of English mainstream, right? The politics of identity therefore does not address their issues. Their issues is not कि मुझे recognize नहीं किया जा रहा है as a white person. White person को तो marginalize नहीं किया, as being whiteness को तो marginalize नहीं किया जा रहा ना, being male को तो marginalize नहीं किया जा रहा ना, इन चीज़ों को तो marginalize नहीं किया जा रहा, तो इनका ये मसला ही नहीं है. तो जब आप इनके सामने वो कहेंगे politics of recognition, they won't feel like this is really their politics. They are more interested, therefore, obviously, in the politics of redistribution. So some people are interested in the politics of recognition, other people are interested in the politics of redistribution, depending on where you are. And you can also have a cross-section. You can also have people who are poor, and also part of a marginalized community. So for example, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इंग्लैंड के अंदर वर्किंग क्लास हैं, तो आपके कुछ मसाइल हैं एज अ वर्कर, और कुछ मसाइल हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन एज वेल, कि हमारी सकाफत को भी पहचानो. सो नाउ लेट्स लुक एट द 3 स्टेजेस ऑफ द डिस्कशन ऑन मल्टीकल्चरलिज्म. पहला स्टेज तकरीबन 70s-80s में शुरू है. हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स वेस्टर्न एकेडमिक डिस्कोर्स की. सो उस वक्त जो मेन फॉल्ट लाइंस थी वो लिबरल्स और कम्युनिटेरियंस के दरमियान थी. लिबरल्स ऑफ कोर्स ये कहते थे कि इंडिविजुअल लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर कम्युनिटी जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को फॉरवर्ड नहीं करती या प्रमोट नहीं करती या सपोर्ट नहीं करती, तो इंडिविजुअल के पास पूरा इस्तेहकाक है, राइट है कि वो उस कम्युनिटी को छोड़ सकता है. जबकि कम्युनिटेरियंस एक बड़ी डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देते थे. वो कहते थे द इंडिविजुअल इज एम्बेडेड इन अ कम्युनिटी.
और इसमें कुछ हकीकत है और इस बात को समझने की ज़रूरत है. द कम्युनिटी कैनॉट बी रिड्यूस्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, and liberalism was actually very destructive of these communities and did not recognize that the values I have as an individual are formed in relationship to my community. Sometimes in opposition to my community, sometimes in conformity with my community. So individual को community से अलग देखना भी एक abstraction का अमल है जो कि liberals अक्सर करते हैं, मगर ये कोई sense नहीं बनती. Of course the communitarians wanted to use this as a conservative argument to say exactly what I am resisting throughout, कि हम ब्रिटिश लोग कभी उन इंडियन लोगों के साथ मिलजुल नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं, वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो तुम उधर हम इधर टाइप आर्ग्यूमेंट. Liberals were saying नहीं ऐसी कोई बात नहीं, we're all individuals, individual liberty, so they were universalists, we can all get along type people. So but the communitarians nonetheless had a point that our in what we as individuals desire is created in the context of our community. That was not wrong. So there in the 1990s then we developed, or academics rather, came over to what we would call liberal multiculturalism. The idea is that their ability to make good choices amongst good lives is intimately tied up with access to their culture, with the prosperity and flourishing of their culture, and with the respect accorded to their culture by others. यानी कि अगर मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन हूँ या मैं इंडियन ब्रिटिश इंडियन हूँ, अगर मेरे कल्चर की इज़्ज़त नहीं होगी तो मैं एज एन इंडिविजुअल कैसे थ्राइव कर सकता हूँ, या मेरे एज एन इंडिविजुअल मेरी क्या इज़्ज़त होगी अगर मेरी सकाफत की इज़्ज़त नहीं हो सकती. If society looks down upon me because of the color of my skin, or because of my race, or because of my gender, or because of any other trait identity that I have, तो अगर मेरी कम्युनिटी की इज़्ज़त नहीं होगी तो मेरी कैसे उससे अलग होकर कैसे इज़्ज़त हो सकती है. It's a very important point. So then liberals came over to the point of view कि हाँ communities को भी उस तरह rights मिलने चाहिए जिस तरह हम individual को right देते हैं कि एक community के भी rights होते हैं. So the community must be recognized. This is what we call the liberal culturalist position. So the argument, of course, developed that minority rights may undermine individual freedoms from the conservative side of the spectrum. Conservatives ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, अगर आप इनको ये cultural rights दे देंगे, इनका तो culture ही बड़ा ख़राब है. इनका तो culture ही वो है कि जो बड़ा ये अरेंज मैरिजेस करते हैं, इनके डिवोर्स कन्वेंशंस बड़े ख़राब हैं, ये सेग्रीगेशन में रहते हैं, ये औरतों को पर्दे में डाल देते हैं, ये जनरली बड़े इनटॉलरेंट किस्म के लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, फलाने ढमकाने. कुछ थे भी, ये भी नहीं कि हम बड़े फरिश्ते हैं और हमें कोई ख़राबियाँ नहीं, ये भी नहीं कि वो फरिश्ते हैं उनमें कोई ख़राबियाँ नहीं. सो कुछ चीज़ें ये हैं भी ऐसे, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं भी, इसमें कोई शक नहीं. बट डज दैट बिकम अ valid enough argument to not recognize them and their distinction and their culture and their heritage by saying कि इनके culture में ये हिस्सा है लिहाजा पूरा culture ही reject कर दिया जाए. What do liberals do when liberal multiculturalism contradicts individual freedoms? Should one tend towards cultural relativism or universalism? ये debate बन गई कि अब फ़र्ज़ करो एक culture है जो ये कहता है कि अब नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, चलो ये एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई ये कल्चर है जो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा एज अ फादर, और मैं जहाँ मर्ज़ी शादी कराऊँ और बेटी को माननी पड़ेगी मेरी बात, उसका कोई उसमें कहना नहीं होगा. अब मैं अगर ये कहूँ कि ये मेरे कल्चर का हिस्सा है, ये मेरी सकाफत है जी, आपको क्या, आप दफ़ा हैं क्यों गोरे आके इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे कल्चर के अंदर. तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि गोरे क्या कहेंगे, गोरे ये कहेंगे कि हाँ यार ये इनका कल्चर है, यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कल्चरल रिलेटिविज़म करेंगे, या वो ये कहेंगे कि नहीं देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल वैल्यूज़ जिससे आगे हम नहीं जा सकते. इसमें ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट योर कल्चर, ये तो आप अपनी मनगढ़ंत बात बना रहे हैं इन ऑर्डर टू जस्टिफाई व्हाट यू वांट टू डू. आप ये तो नहीं है कि आपके कल्चर में ख़वातीन की ज़बरदस्ती शादी कराई जाए, ये भी आर्ग्यूमेंट की जा सकती है एंड सो ऑन. सो एनीवे ये दो पोल्स बन गए विद इन लिबरलिज्म बिटवीन द relativist and the universalist positions. Kymlicka हमें ये कहता है कि we can think of this as internal restrictions are when a minority restricts the freedom of its own members. This can be with respect to perhaps women, other marginalized communities. Perhaps हो सकता है अगर आप एक certain point of view रखते हैं, आप कहते हैं कि जो मेरी कास्ट में मेरे से लो है, मेरी कम्युनिटी का मेंबर है, मगर वो लो कास्ट का बंदा है तो वो ज़रा नीचे ही रहे, ये भी हो सकता है.
So internal restrictions भी होती हैं और external protections. Both have to be looked at. External protection is needed for minority as a whole against the majority community. जब majority minority community को accept ना करे तो आपको external protection की ज़रूरत है for that particular community. उसके खिलाफ racism हो. For example, African Americans, blacks are a very good example of this. Minority rights are consistent with liberal culturalism if number A, they protect the freedom of individuals within the group, तो ग्रुप के अंदर भी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, एंड दे प्रमोट रिलेशंस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन ग्रुप्स एज वेल. दोनों चीज़ों को मैनेज करना है. दैट इज द चैलेंज ऑफ लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म. है ना दिलचस्प बात? So the argument of eternal restrictions is often used by conservatives to limit the demand for external protection, i.e. multiculturalism. कि ये बड़े ऐसे लोग हैं लिहाजा इनकी कल्चर को रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं, हमारी यूरोपियन वैल्यूज बड़ी सुपीरियर हैं. सो दैट लीड्स टू यूरोसेंट्रिज्म ऑफ कोर्स, एंड यूरोसेंट्रिसिज्म इज अ सटल फॉर्म ऑफ रेसिज्म. तो वहाँ भी नहीं जाना और इस किस्म के अपोलोजेटिक्स में भी नहीं फंस जाना कि क्योंकि कोई चीज़ इंडियन कल्चर है या पाकिस्तानी कल्चर है या अरब कल्चर है तो बस जो भी है वो कल्चर वो ठीक है. आफ्टर ऑल हमारे कल्चर के अंदर भी बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें. ऑनर किलिंग्स एक मिसाल है. कुछ लोग समझते हैं बिल्कुल ठीक है, औरत को मार दो, अगर वो अपना फैसला खुद करे उसको कत्ल कर दो. तो अब हम कल्चरल रिलेटिविज्म में अगर आ जाएं तो हम मर्डर को भी जस्टिफाई करते हैं, सती को भी ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस चाहिए होता है. जो तीसरा फेज शुरू होता है वो ये होता है कि जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनका एटीट्यूड ये था ऑफ बिनाइन निग्लेक्ट या स्टेट न्यूट्रलिटी. और दिस वर्क वेरी वेल इन द कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि वो कई सालों से जंग कर रहे थे. उन्होंने कहा अब हम इस सवाल को देखेंगे नहीं, रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा, मज़हब आपका ज़ाती प्रॉब्लम है, हमने इसे हम निगलेक्ट करेंगे, बिनाइन किस्म की निगलेक्ट होगी, आप जो मर्जी रिलीजियस प्रैक्टिस करते रहें, हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं. एक किस्म की ला ताल्लुकी पैदा कर दी उन्होंने मज़हब से ऑल टुगेदर. हमने तो हर सिटीज़न को बराबर के हकूक़ देने रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. आप मुसलमान हैं या आप कैथोलिक हैं या आप प्रोटेस्टेंट हैं, हमने सबको बराबर के हकूक़ देने. तो एक तरह से वो रिलीजन से स्टेप बैक करके उसने कहा कि हम किसी रिलीजन को फेवर नहीं करेंगे, रियासत का कोई रिलीजन होगा ही नहीं. तो यही एटीट्यूड उनका पहले इस तरफ भी था, कल्चर की तरफ भी था. बिनाई उनका ख्याल था कि अगर हम इस चीज़ को बस छोड़ दें कि हम बस एक ही कानून बना दिया है, चाहे अफ्रीकन अमेरिकन हो कोई या कोई वाइट हो या कोई बांग्लादेशी हो, तो जिस तरह हमने रिलीजन का मामला से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, अगर हम कल्चर के मामले से भी लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे तो शायद ये खुद ही ठीक हो जाएगा. एक ही एटीट्यूड था. दूसरा एटीट्यूड था कि नहीं, जो बंदे हमारे मुल्क में आ रहे हैं दे हैव टू लर्न सर्टन बेसिक थिंग्स. दे हैव टू लर्न आवर लैंग्वेज, दे हैव टू लर्न अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, ये सीखेंगे. और उसमें जो उनका एम्फेसिस था वो ये था कि अगर टर्की से कोई बंदा जर्मनी आ रहा है तो उसको हमने टर्क नहीं रहने देना, उसको हमने जर्मन बना देना है. तो ये भी एटीट्यूड था. और अक्सर मुल्कों का जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनका ये एटीट्यूड था कि उनको हमने फ्रेंच सिखानी है. जो अफ्रीका से लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको हमने फ्रेंच बना देना. दे विल बिकम ब्लैक फ्रेंच पीपल. सो दे विल बी रेशियली ब्लैक एन अफ्रीकन, but they will be culturally French. So it will be multiracial but one culture. अब इसके बरक्स दूसरा नुक्ता नज़र ये है, there doesn't have to be one culture, let's have a multicultural state. So multiculturalism that developed as a response by saying कि benign neglect से बात नहीं बनेगी, उलट करना पड़ेगा. और वो ये करना पड़ेगा कि दूसरे लोगों के कल्चर को रिकग्नाइज करते हुए और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए हमने उनको ब्रिटेन के अंदर या अपने मुल्क के अंदर जोड़ना है. ये भी नहीं कहना कि तुम अपनी सकाफत ख़त्म कर दो और ब्रिटिश बन जाओ, ये हो भी नहीं सकता. और ये भी नहीं कहना कि बिनाइन निगलेक्ट है, तुम जो मर्जी करो, तुम जो मर्जी करो, बस हम क्योंकि उसमें से तो जो मर्जी करो से तो बात नहीं बन रही. क्योंकि एक पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री है भाईजान, जिसके अंदर ब्रिटेन ने उस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है फॉर समटाइम्स 100-200 ईयर्स, जिसकी वजह से पूरा एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बना है जो बड़ा रेसिस्ट है, एथनोसेंट्रिक है एंड सो ऑन. तो फिर आइडिया ये बना कि नो वी हैव टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी दैट इज हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड, टू ब्रिंग इट अप एंड टू integrate it, not by denying its identity but by recognizing, acknowledging its identity. But we have to have certain policies that help us come together, live harmoniously together. So that is the attitude that developed multiculturalism.
इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की रिकग्निशन ज़रूरी है। एक है नेशनल माइनॉरिटीज़, सिंधीज़ आर अ नेशनल, आर अ नेशन विद इन पाकिस्तान, पश्तून्स आर अ नेशन विद इन पाकिस्तान, ऑफकोर्स वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, बलोच भी, पंजाबी भी एंड सो ऑन। तो उनकी अपनी टेरिटरी है, वो एक पूरा वेल डिफाइंड अपनी टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? अक्सर ऑटोनॉमी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी, फेडरलिज्म चाहते हैं, और अगर उनको ये सब चीज़ें ना मिलें तो कभी कभार वो फिर इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, जैसे ईस्ट पाकिस्तान में हुआ। दूसरा, इंडिजिनस पीपल। हम तो खैर यहाँ तकरीबन सारे इंडिजिनस हैं, मगर इंडिजिनस पीपल जिस तरह नेटिव अमेरिकन थे, जिनको के डिनाई करके उनके खिलाफ एक किस्म की जेनोसाइड हुई, उनको रिजर्वेशंस पे फेंक दिया, बुरा हाल कर दिया, उनका क्वेश्चन है। अब वो ये नहीं कह रहे कि हम अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, वो बना भी नहीं सकते, वो अब इतनी तादाद में ही नहीं रहे कि अपना मुल्क बना लें, मगर वो ये चाह रहे हैं कि हमें भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनके लिए और फिर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। फिर है इमिग्रेंट ग्रुप्स, लीगल एंड इलीगल। तो दे वांट, इमिग्रेंट ग्रुप्स भी अलहदगी नहीं चाहते, वो बल्कि चाहते हैं कि हमें इंटीग्रेट किया जाए। वो ऑटोनॉमी भी नहीं चाहते, वो ये कहते हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए, हमें लीगल राइट्स दी जाएँ, ख़ासतौर पर अगर वो इलीगल है, और अगर वो लीगल है तो वो इंटीग्रेशन चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते, वो मार्जिनलाइजेशन के उलट है। फिर दूसरी तरफ आइसोलेशनिस्ट एथनो रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी से ताल्लुक नहीं रखना, हमारा अपना मजहब है, हम अलहदा रहेंगे। इसमें आमिश कम्युनिटीज़ हैं, हसीडिक जूज हैं एंड सो ऑन। दे वांट एग्जेम्पशंस। फॉर एग्जाम्पल, दे से वी वांट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, वी वांट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग दीज टैक्सेस, वी वांट टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्कूलिंग। इवन हमारे बच्चे आपके स्कूलों में नहीं जाएंगे, हम अपने स्कूल बनाएंगे, एक्सेट्रा। ये और चीज़ है। एंड फाइनली यू हैव रेशियल ग्रुप्स, दोज हैव बीन who have been discriminated against on the basis of race, African Americans, और इसमें कास्ट भी शामिल की जा सकती है और जानी चाहिए। कास्ट ग्रुप्स, जिस तरह इंडिया के अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन है अबाउट कास्ट प्रिविलेज एंड हाउ टू अनडू कास्ट। लास्ट, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? National experience of the last century has shown from many different countries, communist countries, liberal countries, capitalist countries, illiberal countries. What has it shown? It has shown the following. National integration of a multinational society is a long and intergenerational process. ये एक जनरेशन में होता ही नहीं, इसमें कई जनरेशन। पहली बात तो ये, तारीख भी उठा के देखें, several generations. Coercion always causes resentment, resistance and the assertion of a distinct identity. जब वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन ये कहते हैं ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ब्लैक इज प्राउड, ब्लैक पावर की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं मार्जिनलाइजेशन की मुखालफत में। जब आप कोर्जन लगाएंगे तो उलट रिएक्शन होगा। इंटीग्रेशन ऑलवेज गोज स्मूदर विद रिकग्निशन ऑफ डिफरेंस। अगर आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि यस you have a different culture, but I respect your culture, I respect it, I respect your language, I respect your traditions, I want to learn about them, I want to know about them, I want everybody to learn about them. जब आप उसको इज्जत देंगे वो आपको इज्जत देंगे। The specific policy required to achieve a harmonious multicultural society depends on the kind of minority, क्योंकि minorities की kind different होती है। The peculiar kind of status hierarchy, उसको समझना ज़रूरी है। The specific type of recognition or exemption required, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें किस एक्सेस पे उनको recognition चाहिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। So इसका कोई एक solution नहीं होता, स्पेसिफिक चीज़ों को समझना होता है। किस किस्म की माइनॉरिटी है, किस किस्म की recognition डिमांड करी, प्रॉब्लम क्या है उसकी, हिस्ट्री क्या है, एंड सो ऑन। Such demands for recognition also have to be balanced against maintaining the rights of the individual and or communities within the minority community. So minority community है, उसके अंदर individuals तो हैं ही हैं, मगर उसके अंदर भी communities हो सकती है ना। दिलचस्प बात कि फॉर एग्जाम्पल सिंध की हिंदू कम्युनिटी है, तो सिंध की हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी कास्ट हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ओ यस वी रिकग्नाइज दिस कम्युनिटी एक्सेट्रा एंड फॉरगोइंग the obligation of the state also to defend every individual, right, and every community. So this is a very tricky thing that requires deep knowledge and understanding of that particular complex problem and society in order to devise a policy, and not just a policy, but in order to devise a course of action. It's not just कि आपने policy paper लिख दिया गल मुक गई, to bring people together in a way
where different people of different cultures come to live together in a harmonious, peaceful society. Thank you.